Hello everyone, welcome to my channel. This is Kushal. Students, as you know that I was teaching you the lesson The Ailing Planet, and we have two choices in present time, either to control the population or to live in constant poverty. So it depends on us what we do. Okay, so we have to start from here today. For the first time in human history, we see a transcending concern. For the first time in the history of mankind, we are facing a transcending concern. Transcending means surpassing, जो बहुत आगे पहुंच चुकी है, यानी बढ़ती हुई. Concern means चिंता. In present time, we are facing a transcending concern. The survival not just of the people but of the planet. We are facing a very serious concern, that is the concern of the existence of the very planet. Okay, अब planet के ही existence की चिंता है. Okay, we are not worried about the existence of the people now. Now we are worried about the very existence of our planet. We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. तो आज हमारे सामने ये बढ़ती हुई चिंता है कि हमें इस प्लेनेट के एग्जिस्टेंस की चिंता करनी है, इसका हमें ध्यान रखना है. तो हमने सोचना शुरू कर दिया है. वी हैव स्टार्टेड टेकिंग अ होलिस्टिक व्यू. संपूर्ण जो है सोच रखना शुरू कर दिया है अर्थ के प्रति हमने. ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ अवर एग्जिस्टेंस, जो हमारे अस्तित्व का जो आधार है उसके प्रति. अब हमारे अस्तित्व का आधार कौन है? अर्थ है, जो हमारा प्लेनेट है. ठीक है, तो उस प्लेनेट के प्रति हमने होलिस्टिक व्यू रखना शुरू कर दिया है. ओके, then the environmental problem does not necessarily signal our demise. देखिए, environmental problem which we are facing today is not the clue of our death. कि ये जो आज हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है, जो और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट मतलब नहीं है कि भाई हमारी डेथ होगी, हमारी डिमाइज हो जाएगी. डिमाइज मीन्स डेथ. इट इज आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर. बस इसका ये मतलब है कि हमारे फ्यूचर के लिए ये पासपोर्ट तैयार हो रहा है. ठीक है, यानी कि जल्द ही हम जो है डिमाइज की तरफ चले जाएंगे. ठीक है, और बहुत जल्द ऐसा होने वाला है. द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज अश्योर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जो ये आज की उभरती हुई नई दुनिया का विजन है, कि जो आज एक आदमी में एक चीज अंडरस्टैंडिंग आई है, इसकी वजह से अश्योर्ड मीन्स होता है टू बिगिन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज स्टार्टेड अ न्यू एज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, मीन्स टुडे वी हैव अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स. आज हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है. ठीक है, जिम्मेवारी के युग की शुरुआत हो गई है. आज दुनिया के हालात ऐसे हैं, आज की जो इमर्जिंग वर्ल्ड विजन है, तो वो उसने हम पर एक बहुत बड़ी मतलब जिम्मेवारी दी है, और हमें इस जिम्मेवारी को बहुत अच्छे से करना है. ठीक है, it is a holistic view and ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts. So we are adopting holistic and ecological view towards the earth because we consider the whole world, we consider the world as an integrated whole, means we consider the world as a single unit, then a dissociated collection of parts, means we consider world as a single unit rather than a collection of different parts. डिफरेंट पार्ट्स के कलेक्शन की बजाय हम इसको एक सिंगल यूनिट के रूप में कंसीडर करते हैं.
ठीक है, अब हम सारी दुनिया के बारे में सोचते हैं। इंडस्ट्री हैज अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, ये जो जिम्मेवारी का युग आ गया है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका कौन निभा सकता है? इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री हैज अ मोस्ट क्रूशियल, क्रूशियल से रिलेटेड है बहुत ही, यानी कि आप वाइटल यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, crucial role to play in this new era of responsibility. In this new age of responsibility, industry can play a vital role. Industry can play a very important role. Okay, it can bring a great change in the present circumstances. What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. So the writer says that there would come a great transformation. ठीक है, effect means to come into effect, effect में आना, to come into effect. Okay, तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो आ जाएगा, इफेक्ट में आ जाएगा। कब आ जाएगा? इफ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू, अगर सभी बिजनेसमैन जो हैं शेयर करें, साझा करें, किसके व्यू को? चेयरमैन ऑफ डूपॉन्ट। डूपॉन्ट इज द नेम ऑफ अ कंपनी, और इस कंपनी का जो चेयरमैन है मिस्टर एडगर एस वुलार्ड, इसके अगर व्यू पॉइंट को, अगर इसके दृष्टिकोण को सभी बिजनेसमैन अपना लें तो एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट हालातों में। तो इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस देयर वुड come a great change, there would come a revolution if all the businessmen adopt the perspective of Mr. Edgar S. Woolard, the chairman of DuPont. तो ऐसा क्या किया था इन्होंने कि जो उनके एग्जाम्पल दे रहे हैं राइटर? लेट्स सी। Who 5 years ago declared himself to be the company chief environmental officer. Actually, Mr. Edgar S. Woolard डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, ये 1994 में पब्लिश हुआ था ये आर्टिकल, और उसमें कह रहे हैं 5 years ago। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं आई थिंक इसको, है ना। तो मिस्टर एडगर एस वुलार्ड जो है उन्होंने डिक्लेयर किया खुद को, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द कंपनीज चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर, है ना। उसने अपने आप को क्या बना दिया? सीईओ, चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, कंपनी का। He said, उन्होंने बोला, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. And he said that their importance as a prominent manufacturer was only when they gave importance to environment, when they were serious about environmental problems and taking some measures to conserve the environment, to protect the environment, तभी उनका महत्व है ना। तभी उनको एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर के रूप में माना जाएगा जब वो एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान रखते हैं तो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी इन्होंने बात कही कि अगर हम एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हैं ना तो हमारे कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। अगर हम एनवायरनमेंट की कॉस्ट पर अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो फिर उस मैन्युफैक्चरिंग का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बात जो है किसने कही थी? ये मिस्टर एडगर एस वुलार्ड, द चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर ऑफ डूपॉन्ट कंपनी। ठीक है, okay, let's proceed students. Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English uses as her felicitous words. देखिए, Margaret Thatcher, have you ever heard about Margaret Thatcher? I think you will have heard. She was the prime minister of Britain. Okay, and she actually coined many statements. She said many important statements, and out of them one important statement is cited here. So let's see क्या कहा था उन्होंने।
उनके जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स है, सारी स्टेटमेंट में से ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी उस दौरान जो उन्होंने बातें कही थी, इनमें से नन हैज पास सो डिसाइसिवली इनटू द करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूसेज, मीन्स नो स्टेटमेंट इज एज पॉपुलर एंड सुटेबल एज दिस इज, एज वी आर गोइंग टू रीड, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इतनी कोई पॉपुलर भी नहीं है और इतनी कोई फेलिस्टस भी नहीं है। फेलिस्टस मीन्स सुटेबल, बिफिटिंग, ठीक है। नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, क्या बोला उन्होंने? शी सेड दैट नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस प्लैनेट, ऑन दिस अर्थ। फ्री होल्ड क्या होता है? फ्री होल्ड एक तरह से मतलब फुल राइट और लीगल ऑनरशिप, ठीक है। मीन्स nobody on the earth has full ownership on the earth, कि अर्थ के ऊपर फुल ओनरशिप नहीं है, पूरी तरह से ओनरशिप नहीं है। तो फ्री होल्ड, किसी अगर प्रॉपर्टी पर अगर हमारा फ्री होल्ड होता है तो इट मीन्स जो है हम उसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, उसको किसी दूसरे पर्सन को हम बेच सकते हैं, हमारा लीगल मतलब राइट होता है। तो ऐसा अर्थ के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज। वी एक्चुअली आर लाइक द tenants on the earth and we have to take care of the earth as if we have taken the property on lease। जैसे लीज पर प्रॉपर्टी हम लेते हैं तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी टूट फूट की जिम्मेवारी है, उसको टेक केयर करने की जिम्मेवारी, उसके मेंटेनेंस की जिम्मेवारी है। तो इसी तरीके से धरती भी मतलब हमें लीज पर मिली है, ठीक है, और उसकी हमें देखभाल करनी है, उसकी हमें नीड्स का हमें ख्याल रखना है, ये सब चीजें हैं। तो हम तो एक तरह से टेनेंट्स की तरह हैं, मतलब यहाँ किराएदार की तरह हैं, ठीक है। और किराएदार भी कैसे कि जैसे लीज पे कोई चीज ले लेते हैं, तो ऐसे। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर Brown, we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children। This is very important line from exam point of view, so you may be asking a question। Mr. Lester Brown has said we have not inherited this earth from our ancestors, from our forefathers, from our ancestors, है ना। We should think that we have borrowed it from our children and so it's our onus to bequeath a healthier planet to them, ठीक है। तो ये हमारे फोरफादर्स की प्रॉपर्टी नहीं है कि इसका हम जिस तरीके से हम चाहें वैसे इस्तेमाल करें, है ना। जितनी मात्रा में हम मतलब इसके नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना चाहें वैसे हम करें, तो हम ऐसे करने के लिए हम फ्री नहीं हैं, ठीक है। हमें ये समझना होगा कि अगर हमें इफ वी हैव नॉट फेस्ड एनी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ आवर एंसेस्टर्स, देन व्हाई वी पीपल आर causing problems for our coming generation by misusing all the natural resources, okay। If our ancestors have bequeathed a healthier planet to us, then it is our onus to bequeath a healthier planet to our coming generation also, ठीक है। तो उनको हमारी वजह से सफर ना करना पड़े, ये सब हमें इस तरीके से हमें ट्रीट करना है। So your lesson is complete now. Thank you.